Welcome in science class. Good morning, all of you. Once again, I'm going to start. So, today I'm going to start chapter 11, Force, Work, and Energy. Okay. So, in this chapter, I'm going to start. I'm going to describe what is force, what is works, and energy. Okay, and what is the correlation between among them. Okay. So, let's start our concerning points. A push or pull acting on an object is called force. So, it's a very genuine definition of force. What is push or pull? So, what is pull? If anything is towards a body, that is called pull, and which is away from the body, it is called push. So is anything, so what is force? A push or pull acting on an object. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे को अपने पास ले जाएं या अपने से दूर ले जाएं तो उस पे जो एक्टिविटी होगी, so that is called force. We can move object or change their shape by applying force. Okay, so we can, हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, ठीक है, या उसकी जो शेप होती है उसको चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, तो नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स में कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट मूविंग. फोर्स में कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब इफ देयर इज मूविंग सो इट कैन स्टॉप और स्टार्ट मूविंग, मतलब यदि रुकी हुई चीज़ को चला सकता है या चली हुई चीज़ को स्टार्ट कर सकता है. टू चेंज इट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर सकता है या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. टू इंक्रीज और डिक्रीज इट स्पीड. Okay, force can also increase or decrease the speed of the object or to change the shape of the object. और किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज कर सकता है. In nature there are two types of force are acting all the time. हमारे नेचर में दो तरीके के जो फोर्सेस होते हैं वो हर समय काम करते हैं. तो these are first of all gravity and other one is friction. First of all gravitational force or gravity, and other one is friction force or friction. So we are discussing what is gravity. What happens when we throw a ball into the air? क्या होता है जब हम बॉल को देते हैं हवा में? It first rise up, then seems to stop, and then fall to the ground. You can easily experience this. You can throw the ball and what will be the result? Why does not the keep going upward? फिर ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? This is just because of gravity. The force that pull object downwards toward the center of the earth is called gravity. तो gravitational force or gravity is a force that pull object towards the center of the earth. मतलब ये ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, इट्स पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, मतलब पृथ्वी अगर अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ gravitational force. When you throw a ball, you throw it with a lot of force, more than the force of gravity, so it rise. As the ball move up, it loses force and gravity pull it down. When you throw a ball up, जब भी आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, है ना, you throw it with a lot of force. आप जब फेंकते हैं ना तो बहुत सारा फोर्स आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है. मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑब्वियसली जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या ग्रेविटी होगी उससे ज़्यादा ही आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो इट्स राइज. सो इस वजह से वो क्या करता है,
बॉल जो है ना वो ऊपर चली जाती है। एज द बॉल मूव्स अप, जैसे ही बॉल मूव होती है, इट लूज इज फोर्स, उसका जो हम लोगों ने जो फोर्स लगाया था ना वो कम हो जाता है। एंड देन द ग्रेविटी पुल्स इज डाउन, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द बॉल pulls it down. Similarly, the leaves and the ripe fruit always fall on the ground due to the force of gravity. सिमिलरली आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं और जो राइस फ्रूट्स होते हैं ना, दे फॉल ऑन द ग्राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अनलेस दे आर प्लग, जब तक कि उन्हें तोड़ा नहीं जाता है सो दे आर प्लग। ठीक है, सो leaves so what is gravity? Gravitational force or gravity is a force that pulls objects downwards toward the center of the earth. Okay, now this is friction force. When a ruler is pushed across a table, it stops after moving a certain distance. When a ruler is pushed across a table, जब भी हम किसी रूलर को टेबल पर पुश करें, इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ सर्टेन, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अपने आप रुक जाएगी। इट स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये रुक जाएगी क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज अ फोर्स इज अप्लाइंग बिटवीन द सरफेस एंड द रूलर, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड friction. So what is friction? Friction is a force that is present when two things are come in contact with each other. फ्रिक्शन फोर्स बेटा तब लगता है जब दो सरफेस हमारे कंटेक्ट में आती हैं। When an object is in contact with a surface, a force called force of friction act between them. ठीक है, जब दो सरफेसेस या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। द फोर्स रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट आइदर स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग। ओके, because of friction the object either slow down or stop moving.